vibrational as well as rotational spectrums. Both are seen in one spectrum, therefore it is called vibrational rotational spectrum. Why this type of spectrum occur? I already told you, because electronic energy level having inner side vibrational energy level and vibrational energy levels having inner side rotational energy level, and rotational energy level, for change in rotational energy required microwave energy, for change in vibrational energy required infrared radiation, and for change in electronic energy level required ultraviolet visible electromagnetic radiation. तो वी सी कि सपोज शेल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो वन शेल टू अदर शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, therefore required very high energy because energy gap is very high, therefore required energy also high, and therefore ultraviolet visible light is required. Okay, for visible having low vibrational required low energy from electronic transition, that will be IR radiation. But we see here in electron energy level having various types of vibrational energy level, and in one vibrational energy level having various rotational energy level. तो सबसे छोटा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं दे आर रोटेशनल, एंड रोटेशनल मीन्स एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. Therefore, when we give the energy to the molecule, just like IR radiation, when we give the molecule and when molecule interacts, sample interacts with this IR radiation, so therefore change in vibrational energy and they change as well as rotational energy also change, because rotational energy levels are resides inner side of the vibrational energy levels. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम IR रेडिएशन देते हैं मॉलिक्यूल को तो मॉलिक्यूल IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, और ड्यूरिंग एब्जॉर्बिंग IR रेडिएशन दे हैव चेंज्ड इन वाइब्रेशनल एनर्जी, बट व्हेन they change in vibrational energy they as well as change in rotational energy levels, because vibrational में अंदर की साइड क्या होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं. लाइक एज जैसे हम एक क्लासरूम में बैठे हैं और उस क्लासरूम में बहुत सारी टेबल्स हैं, तो जो टेबल्स है नंबर ऑफ टेबल्स में वी कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, एंड वन रूम टू सेकेंड रूम में वी कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. तो व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम one classroom to second classroom, then they will be transition takes place from always any table to other table from second vibrational energy level. तो हमको दो चीज़ साथ में दिखती है, वाइब्रेशनल एनर्जी में भी चेंज होता है लेकिन साथ में हमको रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल का गेप्स बहुत छोटा छोटा होता है और वो किसके अंदर होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर होता है. क्लियर? तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसलिए हम उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम. तो यह आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी गेट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑलवेज having the change in the molecule rotational energy levels also, therefore molecules will be get vibrational as well as rotational energy levels. तो ये आपको याद रखना है, change in vibrational energy as well as change in rotational energy also takes place by the molecule, therefore we will get vibrational rotational spectrum of the molecules. Okay. So now what is the selection rule for vibrational rotational spectrum? तो selection rule for a vibrational rotational spectrum. तो next point is selection rule. So now we start selection rule.
or maybe say here daily JV means JV, why JV? J is called for rotational and V for called vibrational. So daily change in rotational vibrational energy, it means daily J plus daily V in centimeter inverse. Maybe say means both change in energy takes place rotational as well as vibrational, and there is required selection rule, and selection rules states here del V equals to plus minus 1 plus minus 2 maybe plus minus 3 and so on, and del J always equal to plus minus 1. तो क्या मतलब हुआ कि जब भी ट्रांजिशन होता है तो सपोज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो चेंज होता है इट मे बी 1, 2 और मे बी 3, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन दैट मे बी फंडामेंटल, मे बी फर्स्ट ओवरटोन, मे बी सेकेंड ओवरटोन इन केस ऑफ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर. तो इन जनरल हम 1 वाला ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बट मे बी 2 and 3 आर आल्सो अलाउड, बट del J always plus minus 1 is taken for vibrational rotational spectrum. तो हमको ये सिलेक्शन रूल याद रखना है. नाउ अलाउड एनर्जी लेवल, दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन. श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर गेटिंग allowed transition in vibrational rotational spectrum. तो फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं वो हम क्या लिखेंगे? तो वी नोट डाउन हियर del J comma V इक्वल टू, इन सेंटीमीटर इनवर्स की हम बात करेंगे तो नोट डाउन ई जे डैश एक जे डैश लेवल लेंगे हम, वी कैन टेक जे डैश, और एक ले लेंगे हम जे डबल डैश, एक लोअर लेवल और एक हाई लेवल, एंड वी इक्वल टू 1. ओके, 2 या माइनस कर देंगे जे डबल डैश वी इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन वी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ एनी मॉलिक्यूल, देन जे डैश सपोज ये 1 है, इट मीन्स जे डैश वी सी हियर जे डैश कंसिडर्ड एज ए हायर एनर्जी लेवल, एंड वी इक्वल्स टू 1 मीन्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल विल बी 1. देन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस 1 to 0 या 0 to 1. तो 1 to 0 हायर वाइब्रेशनल लेवल टू lower vibrational level, and difference will be only the 1, and J dash is higher energy level and J double dash will be low energy level. तो we can put here the equation जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. तो जस्ट हमको इसके बाद इसकी वैल्यू लिखना है. रोटेशनल के लिए क्या लिखते हैं, कौन बताएगा? क्या लिखते हैं हम रोटेशनल के लिए? बी जे डैश प्लस 1, ये हम रोटेशनल में लिख देंगे, है ना, बी जे प्लस 1, बट बिकॉज वी पुट हियर जे डैश, देयरफॉर फॉर जे डैश वी पुट इन प्लेस ऑफ जे डैश, तो बी जे डैश प्लस 1 ये हम लिखेंगे. और फिर हम लिखेंगे कि वाइब्रेशनल के लिए लगाएंगे, तो वाइब्रेशनल में हम वी की वैल्यू क्या रख देंगे? वाइब्रेशनल में हम v की वैल्यू 1 रख देंगे. आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ 1 फॉर v बराबर 1, देन वैल्यू विल बी 1/2. मैं आपको बता रही हूँ 1, आप लिख लीजिए. तो इसको 1/2 ओमेगा ई लिखिए, 1/2 ओमेगा ई, 1/2 ओमेगा बार ई माइनस 2 1/4 एक्स ई ओमेगा बार एक्स ई.
ये किसके लिए आई है? दिस इज फॉर फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। हमको डिफरेंस निकालना है। दिस इज द डेली जेवी और हमको डिफरेंस क्या निकालना है? हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू लो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। इफ वी पुट V equals to 1 and V equals to 0, this is the difference for vibrational, and vibrational always gives the change in rotational, therefore J dash and J double dash। तो J dash के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी J dash प्लस 1, और वाइब्रेशनल में हमने वैल्यू पुट कर दी कि V equals to 1, we put the value of V equals to 1, then we get the equation 1 by 2 omega bar E minus 2 1 by 4 x E omega bar E। This is the for higher energy level when J dash and V equals to 1 we will मतलब we have taken। okay, next for minus we put minus, what minus? for J double dash and V equals to 0। तो हम वापस लिखेंगे B J double dash plus 1, then plus we put the sign V equals to 0, and when we put the sign of V equals to 0, then we will get equation 1 by 2 omega E minus 1 by 4 x E omega bar E। This is for the J double dash and V equals to 0। तो for J double dash and this is the rotational energy level change in and plus vibrational। यहाँ vibrational के लिए हमने क्या रखा? V equals to 0। ये रखा हमने J double dash लोअर एनर्जी लेवल, यहाँ रखा हमने हायर एनर्जी लेवल J dash, और यहाँ हमने रखा V equals to 1। and the final equation, resultant equation will be here। we note down, I am noting here, just wait for 2 minutes क्योंकि मैं क्या है मोबाइल को पकड़ कर मैं पढ़ा रही हूँ। तो just note down del E J V and this all in the centimeter inverse, ये आपको याद रखना है। तो ओमेगा E ये याद रखना है प्लस B इन द ब्रैकेट J डैश माइनस J डबल डैश, फिर इन द ब्रैकेट J डैश प्लस J डबल डैश प्लस 1, J डैश प्लस J डबल डैश प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। This is the resultant equation and here sorry this is the omega 0। why omega 0? तो where omega 0 इक्वल टू जो होता है, मैं आपको पूरा भी बाद में बताती हूँ थोड़ा सा, ये होता है ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स ई, ये वैल्यू होती है ओमेगा 0 इक्वल्स टू ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स ई। नाउ you see the screen, you see the board from this one, okay? So you have seen clear the picture, have you seen clear picture? अभी आप yes, ये DHB और ये जो लिखा है ये बोर्ड का वो ध्यान मत देना, पेपर कोट सब हटा लेना और जस्ट सी हमने एक नीचे की इक्वेशन लिखी थी, नीचे नीचे देखें, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम साइड, डेल ई जे वी इक्वल टू E J dash V equals to 1 minus E J double dash V equals to 0। हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल का हम क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस निकालेंगे और हमने इसमें सिलेक्शन रूल अप्लाई कर रखा है V इक्वल टू 1 टू V इक्वल टू 0 फंडामेंटल बैंड्स। क्लियर? तो हमने J डैश के लिए हमारी इक्वेशन रख दी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं B J डैश प्लस 1। फिर हमको V के लिए रखना है तो V इक्वल्स टू 1। तो हमारी जो इक्वेशन थी ना एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली, याद आई कुछ? यू रिमेम्बर्ड? जिसमें था हमारा V प्लस 1 बाई 2 ओमेगा ई बाहर था और फिर माइनस एक्स ई कुछ था और फिर हमने V प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर किया था
वो एक रिजल्टेंट इक्वेशन थी, उसको उसमें इन्होंने v की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। तो v पुट v वैल्यू 1, तो we विल गेट रिजल्टेंट वैल्यू 1/2 ओमेगा ई माइनस 2 1/4 XE ओमेगा ई, एंड देन माइनस क्या, j डबल डैश और v इक्वल्स टू 0। तो j डबल डैश रख दिया, v इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो सिंपल सी बात है 1/2 ओमेगा ई रह जाएगा और 1/4 रह जाएगा XE ओमेगा ई। फिर जब हम इसको कैंसल्ड आउट करेंगे तो हमको बहुत सी चीज़ें इसमें कट जाएगी, और आफ्टर जो कट जाने के बाद जो आएगी ना, ये रिजल्टेंट ये आएगी, ई डेली जे वी ओमेगा ई 1 - 2 XE आएगा, बट ओमेगा ई 1 - 2 XE की जगह यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, वी पुट ओमेगा 0, और वेयर ओमेगा 0 इक्वल टू ओमेगा ई इन द ब्रैकेट 1 - 2 XE, क्लियर। एंड देन प्लस बी जे डैश, और नीचे की इक्वेशन देखें माइनस जे डबल डैश अलग कर दिया, फिर जे डैश प्लस जे डबल डैश प्लस 1 कर दिया, तो ये हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई है, जे डैश माइनस जे डबल डैश एंड जे डैश प्लस जे डबल डैश प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन है डेली जे वी, मतलब फॉर गेटिंग वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम the general expression is that here omega bar 0 plus b j dash minus j double dash in the bracket, and next bracket j dash plus j double dash plus 1 centimeter inverse, where omega bar 0 is nothing, एक वो अब्रीविएशन करके बता दिया, मतलब ओमेगा ई 1 - 2 XE। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो वी मूव नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आई एम ड्राइंग वाइब्रेशनल रोटेशनल for getting right vibrational rotational spectrum. So just I am drawing levels of vibrational rotational energy levels. How will draw the vibrational rotational energy levels? आप लोग लिखते हैं या कि नहीं लिखते हैं? यस मैम। क्योंकि मैं तो मेहनत करके लिख रही हूँ, बाकी मैंने पता है नोट्स भी बना लिए थे, कॉपी में भी लिखा है, और मैंने आज तुम लोगों को उसकी कॉपी भी सेंड कर दी व्हाट्सएप ग्रुप पर। बट मेरे को लगा कि बोर्ड पर पढ़ा दूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा लगे, इसलिए मैंने थोड़ा उसको बोर्ड पर ट्राई कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये एनर्जी का लेवल होगा, और चूँकि हम पहले हमको पता है कि हमको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल हमने v इक्वल्स टू 0 रखा है, हाई एनर्जी लेवल हमने v इक्वल्स टू 1 रखा है, और इन साइड ऑफ v इक्वल्स टू 0 हैविंग मेनी रोटेशनल एनर्जी लेवल, मैं भी आपको बताऊंगी, ज़रा सा मैं पहले ड्रॉ कर लूँ। तो j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 2 के बाद क्या आएगा, j इक्वल्स टू 3, ओके, j इक्वल्स टू 4। और क्या खासियत होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल जब हम बनाते हैं तब, कोई एनी पॉइंट्स दैट वी हैव रिमेंबर्ड, मतलब हैव वी रिमेंबर्ड कि व्हेन वी मेक रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना चाहिए। कोई बताएगा कि क्या याद रखना चाहिए? कुछ भी नहीं है क्या कि जब हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स बनाते हैं तो वी विल मेक एज इंक्रीज द जे वैल्यू, मतलब एज इंक्रीजेज जे वैल्यू सेपरेशन विल बी इंक्रीजेज। ये सेपरेशन बढ़ रहा है, 0 1 2, थोड़ा गैप और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया,
क्योंकि हमारी जो जे की वैल्यू आती है ना वो बढ़ते सीक्वेंस में आती है, याद है ना, 2b, फिर शायद था 6b, 10b, इस तरह से। तो इसलिए ये जे की वैल्यू बढ़ती हुई आती है, इसलिए जो एनर्जी गैप है जे का वो बढ़ता हुआ हमें बनाना है। तो दिस आर द लो जे वैल्यू। अब मैं हाई जे वैल्यू के लिए भी आपको लेके चलती हूँ, अभी बनाऊँगी, फिर मैं लास्ट में आपको पूरा बताऊँगी कि हमको कैसे इसको ड्रॉ करना रहता है और ये किस तरह से हमको दिखता है। ओके, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then you have seen in this manner. आप अगर देख रहे हैं बहुत अच्छे से गौर से तो आप देखेंगे कि यहाँ हमने जो नीचे आप डायग्राम में लिख लीजिएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एट द राइट साइड, दैट इज़ द हियर वाई एक्सिस, और ऐसे नीचे। तो ये ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ती जाती है। जब ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ती जाती है तो हमने दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बना रखे हैं, एक है v इक्वल्स टू 0 और एक है v इक्वल्स टू 1। एंड आफ्टर दैट इन v इक्वल्स टू 0 हैविंग वेरियस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, दे विल स्टार्ट फ्रॉम j इक्वल्स टू 0 then so on, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But we have remembered here कि जैसे जैसे जे बढ़ता है वैसे वैसे हमको वैल्यू भी बढ़ानी है, मतलब डिफरेंस बढ़ाना है एनर्जी गैप का, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमने लोअर एनर्जी लेवल आई थिंक जे डबल डैश लिया है, हाई एनर्जी लेवल ऊपर जे डैश लिया है, अगेन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये v इक्वल्स टू 0 है, ये v इक्वल्स टू 1 है, एंड फॉर v इक्वल्स टू 0 हैविंग वेरियस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, and like as v equals to 1 having various rotational energy levels। और जब हम इसको देखेंगे ये इस तरह के इतना ये जो गैप आएगा ये पूरा का पूरा, एक v0 है, v1 है, सेम ऐसे v2 होगा, सेम ऐसे ही v3 होगा, है ना, और उनके अंदर वेरियस रोटेशनल लेवल्स होंगे। अब अगर हम बात करें कि हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी मतलब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए ट्रांजिशन होता है तो हम क्या याद रख रहे हैं कि वो 0 से 1 जा रहा है, या तो 0 से 1 बोलेंगे या 1 से 0 बोलेंगे। तो हम अगर एब्जॉर्प्शन कंसीडर कर रहे हैं तो 0 से 1 जा रहा है, मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर जा रहा है। तो यहाँ डेल वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +1, और डेल जे भी क्या हो जाएगा +1। तो हम कहाँ से करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा v इक्वल्स टू 0 है इतना बड़ा, और वो ऊपर वाला क्या है v इक्वल्स टू 1 है। बट जब वी स्टार्ट फ्रॉम v0 टू v1 ट्रांजिशन तो हम स्टार्ट करेंगे सपोज j0, तो j0 टू लाइन कहाँ जाएगी j1, j1, j2, j3, j4, j4, j5। तो इस तरह से हमको एक वाइब्रेशनल से दूसरे वाइब्रेशनल में जब मॉलिक्यूल्स जंप करता है तो दे आल्सो जम्प्ड फ्रॉम J2 लो J2 हाई J वैल्यू, एंड डिफरेंस विल बी ओनली डेल J इक्वल्स टू +-1। तो नाउ आई एम ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द ट्रांजिशन आल्सो। तो सपोज ये हम ले रहे हैं यहाँ J0 ये है ना, मैं थोड़ा सा अभी पहले बना लूँ फिर आपको बताती हूँ। J0 और ये यहाँ हो जाएगा J1। तो जस्ट आई विल मेक डायग्राम, मैं भी आपको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर 1, तो 1 से हम कहाँ जाएंगे 2, इफ़ यू टेक J इक्वल्स टू 2 देन वी विल गो J इक्वल्स टू हायर एनर्जी लेवल 3, and if we go J equals to low energy level 3 then high energy level will be 4, or we know already because the separation of the each energy lines gap will be 2b। तो ये जो बराबर डिस्टेंस पे हमको लाइन दिखेगी ये भी 2b, ये भी 2b, ये भी 2b। we will also remember these things also। फिर J equals to 4
then we go J equals to higher energy level 5 and first like this one मैं अभी आपको बता रही हूँ और हम ऊपर ही ऊपर यहाँ लिख देंगे डेल जे इक्वल्स टू +1 मतलब टेकिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिस वन यू सी दिस पिक्चर एंड जब आप ये पिक्चर देख रहे हैं यू आर सीइंग दिस पिक्चर तो यू सी कि जे जो 0 से 6 है ये लो एनर्जी लेवल है और जे अपर जे प्राइम 0 से 6 है वो हाई एनर्जी लेवल है V इक्वल्स टू 0 टू V इक्वल्स टू 1 ट्रांजिशन हो रहा है मॉलिक्यूल में एंड व्हेन मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांजिशन फ्रॉम V इक्वल्स टू 0 टू V इक्वल्स टू 1 तो वो क्या होता है वो किसी न किसी J में भी चेंज जरूर करता है। तो सपोज हम जब J डबल प्राइम मतलब लो एनर्जी लेवल में हम अगर 0 से ट्रांजिशन कराते हैं तो इट विल गो 1, अगर हम 1 से ट्रांजिशन कराते हैं तो इट विल गो 2, इफ इट टेक ट्रांजिशन फ्रॉम 2 तो इट विल गो 3 टू हायर एनर्जी लेवल 4 टू हाई एनर्जी लेवल 5 और 5 goes to high energy level 6 and this is the absorption spectrum means del J equals to +1 है ना बिकॉज हम लो एनर्जी लेवल के उसमें भी J0 से J1 जा रहे हैं J0 से J1 J1 से J2 लो एनर्जी लेवल J2 तो हाई एनर्जी लेवल J3 तो देयरफॉर वी गेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और with high intensity of light. Therefore, we write here del J equals to +1. Have you any doubt? कोई डाउट है आप लोगों को? हेलो? No, ma'am. All things are clear? कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है? किसी को भी संचिता कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है? अरे भाई बात करो ना मैं बोल रही हूँ। हाँ आ रहा है आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे। अब हम इस साइड का देखेंगे लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का पोर्शन देखा वी सी हियर लेफ्ट साइड पोर्शन और यहाँ हम लेके चलेंगे डेल जे इक्वल्स टू -1। जब हम डेल जे इक्वल टू -1 अगर हम लेके चलेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि -1 है मतलब क्या कर रहे हैं हम -1 मतलब हम क्या कर रहे हैं इमिशन कर रहे हैं। तो वी सी हियर हम यहाँ से लेंगे जैसे J इक्वल्स टू लोअर एनर्जी लेवल 1 तो वो जाएगा 0 2 1 3 2 इफ लो एनर्जी लेवल 4 देन हाई एनर्जी लेवल 3 इफ लो एनर्जी लेवल 5 then high energy level will be 4 because difference will be 1 और कौन सा 1 है -1 है। तो now we start for emission spectrum। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से नहीं करते इसको, कहाँ से करेंगे 1 से। 1 2 कहाँ जाएगा ये 0, फिर यहाँ जाएगा 2 2 कहाँ जाएगा तो 2 2 1 जाएगा, फिर 2 के बाद 3 से कहाँ जाएगा तो 3 लो 3 टू हाई 2 लो 4 टू हाई 3 लो 5 टू हाई 4 एंड इफ लो 6 एनर्जी लेवल तो हायर विल बी 5 दिस टाइप ऑफ यू कैन सी। ये मैंने लिखा है यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 से कहाँ जा रहा है एक सेकेंड क्या लिखा सॉरी 0 ये है ये 1 है 1 से कहाँ जा रहा है 0 ये फिर 2 है 2 से 1 3 टू 2 4 3 5 4 6 5 you see this clear picture this one ये 1 से 0 गया 2 टू 1 गया 3 to 2 4 to 3 5 to 4 and 6 to 5 so this left side of the part of this spectrum is seen
वेयर डेल जे वी हैव टेकन डेल जे इक्वल टू -1। जब हम यहाँ क्या वैल्यू पुट कर देंगे, मेरे तो यहाँ हाथ नहीं जा रहा, बट डेल जे इक्वल्स टू -1 रख देंगे। तो दिस फॉर द डेल जे इक्वल्स टू -1 मीन्स हायर लेवल टू लोअर लेवल पे जाएंगे, और दिस राइट साइड इज द पोर्शन वेयर डेल जे इक्वल्स टू वी पुट डेल जे इक्वल्स टू +1 रख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू मैं आस्क। फिर थोड़ी सी एक दो चीज़ें और बताऊंगी मैं। इसके बाद मैं थोड़ा वो पेज में लिखे वैसे ही करेंगे, क्योंकि मोबाइल को भी पकड़कर मैं अब थक गई है। इसमें किसी को डाउट? तो ये जो इन दोनों के बीच का ये जो आता है, ये यहाँ से ये इसका ओरिजिन कहलाता है, दिस वन। इसको हम ओमेगा बार 0 लिखते हैं। ये सेंटर पॉइंट हो जाता है ये वाला। फिर सेंटर के राइट साइड जा रहे हैं, राइट के लिए क्योंकि मेरा राइट हैंड है, तो ये वैल्यू कहलाती है डेल जे +1। सेंटर से हम लेफ्ट जाते हैं तो ये कहलाता है डेल जे इक्वल्स टू -1। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कंडीशन मतलब 0 to 1 जाएगा, 1 to 2 जाएगा, 2 to 3 जाएगा, मतलब ओवरऑल डेल जे इक्वल्स टू +1 होगा। और जब डेल जे इक्वल्स टू +1 होता है तो मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ। यहाँ 1 2 3 टर्मिनोलॉजी आती है, दैट्स आर कॉल्ड PQR ब्रांचेस, एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। PQR ब्रांचेस, और ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। हमको ये याद रखना है, ये सेंटर का ओरिजिन जो होता है ना वो Q होता है। अब Q के अगर हम आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा R, ये हो जाएगा S, और अगर हम Q के पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा O। तो हमको ये याद रखना है कि अगर हम +1 पे जाते हैं, डिफरेंस कैसा लेते हैं +1, तो वी विल गेट R ब्रांचेस। तो ये हम अभी R ही देख रहे हैं सारी, इधर वाली राइट साइड वाली। और अगर हम सेंटर से -1 मतलब डेल जे क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, तो इफ़ वी टेक -1 तो हमको क्या याद रखना है, दे आर कॉल्ड P ब्रांचेस। तो ये P ब्रांचेस हैं, ये आपकी R ब्रांचेस हैं। और फिर अगर हम +2 ले लेते हैं तो ये S ब्रांचेस होगी, और यदि हम यहाँ -2 ले लेते हैं तो ये O ब्रांचेस होगी, जो कि लगभग नहीं होती है, क्योंकि डेल जे हमारा जनरली +1 या -1 वाला ही इक्वेशन फॉलो करता है। तो वी विल गेट R ब्रांचेस व्हेन डेल जे इज टेकन +1। व्हेन वी पुट डेल जे इक्वल्स टू -1 देन वी विल गेट P ब्रांचेस। ओके, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं दूसरी तरह से पढ़ाना चाह रही हूँ, जस्ट मैं चेंज कर रही हूँ मेरा थोड़ा सा, और मैं आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चल रही हूँ। हैव यू सीन स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो? नो मैम। नो मैम। नहीं, दिखना तो चाहिए भाई। मैंने नो मैम। दिख रही है? नो मैम। नो मैम। एक सेकेंड में एक बार और चेक करती हूँ। मैंने इसको प्रेजेंट किया, हो सकता है प्रेजेंट नहीं हुआ होगा। 1 मिनट, प्रेजेंट स्क्रीन, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, स्टार्ट नाउ, एंड देन अब देखना। यस मैम। दिख रही है? यस मैम। है ना? ओके। तो जस्ट आप एक एक अगर पॉइंट थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी, सिंस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर इनसाइड द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, they required low energy for taking ट्रांजिशन ऑफ मोलिक्यूल्स। मतलब माइक्रोवेव लगती है रोटेशनल में, और वाइब्रेशनल में IR लगती है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर आल्सो क्वांटाइज्ड होते हैं, हैविंग या रिक्वायर्ड हाई एनर्जी IR रेडिएशन फॉर टेकिंग द ट्रांजिशन। ई वाइब्रेशनल एनर्जी हाई होती है, ई रोटेशनल एनर्जी वेरी लो होती है। और जब भी IR रेडिएशन होता है, इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है।
बट वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ साथ उसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज हो जाता है, बिकॉज रोटेशनल एनर्जी जो गैप होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो डेली टोटल चेंज इक्वल्स टू डेली वाइब्रेशनल प्लस डेली रोटेशनल, दैट इज़ द सिलेक्शन रूल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने सॉल्व भी कर लिया। और ये प्रेजेंटेशन होता है V इक्वल्स टू 0 लो एनर्जी लेवल वाइब्रेशनल, V इक्वल्स टू 1 हाई एनर्जी लेवल वाइब्रेशनल। फिर हमने लो जे लिया दैट इज़ J डबल डैश, हाई जे लिया दैट इज़ J प्राइम, और फिर हमने उसके J के लेवल्स बनाए। हमको J लेवल्स बनाने में बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि एज इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ J, सेपरेशन ऑफ द रोटेशनल लेवल विल बी इंक्रीज्ड, है ना। तो हमें बढ़ा के लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो अपने को देखना है, ये इसका ये नीचे वाला भी डायग्राम देखिए आप लोग, कैलकुलेशन में बाद में बताऊंगी। इस नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि मैं आपको बोर्ड पे भी बता चुकी हूँ। राइट हैंड साइड डेल जे इक्वल्स टू +1 है, लेफ्ट हैंड साइड डेल जे इक्वल्स टू -1 है। और यहाँ हमने जो नीचे से लिया है लो एनर्जी लेवल से, तो यहाँ हमने J इक्वल्स टू 0 लिया तो वो अपर साइड 1 गया, 1 है तो अपर साइड 2 गया, 2 है तो अपर साइड 3 गया। और अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं डेल जे इक्वल्स टू -1, तो यहाँ हमारी रिवर्स चीज़ हो जाती है, बिकॉज इट इज़ द इमिशन। तो यहाँ हम लेंगे J इक्वल्स टू 1 तो ये 0 जाएगा, 2 हायर 1, लो 3 हायर 2, लो 4 हायर 3, लो 5 हायर 4 बिकॉज -1 करना है, लो 6 हायर 5। एंड जब हम इसका स्पेक्ट्रम जरा नीचे की तरफ देखते हैं बॉटम साइड, तो आप देखोगे एक सेंटर लाइन है जिसे ओमेगा 0 बोला है, जो कि क्या होता है 1 - 2 XC। इसको हम बॉन्ड ओरिजिन बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से फिर ये R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे वैल्यू जाती है राइट साइड। तो मैं आपको ऑलरेडी आई टोल्ड दैट डेल जे इक्वल्स टू व्हेन वी पुट डेल जे इक्वल्स टू +1 तो हमको क्या लाइन मिलती है, हमको R ब्रांचेज मिलती है। ओके, मतलब चाहे हम 0 से 1 में जाएं, चाहे 1 से 2 में जाएं, चाहे हम 2 से 3 में जाएं। और व्हेन वी पुट डेल जे इक्वल्स टू -1 में जा रहे हैं, मतलब इमिशन, तो हम क्या करेंगे, लो एनर्जी लेवल वाले में हम 1 to 0 जाएंगे। मतलब लो जे पे हम 1 लेंगे, हाई जे पे वो 0 पे जाएगा। लो जे 2 लेंगे, हाई जे 1 जाएगा। तो वी विल गेट P ब्रांचेस, PQR। Q को सेंटर में रखना है, मतलब बॉन्ड सेंटर है ओमेगा जैसा, ओमेगा 0। और जब हम Q को सेंटर में रखते हैं तो राइट साइड क्या आता है, Q के R आता है, इट मीन्स डेल जे +1। Q के लेफ्ट साइड क्या आता है, P आता है, PQR। तो देयरफॉर डेल जे इक्वल्स टू -1। तो -1 पे P ब्रांचेस मिलती है, +1 पे R ब्रांचेस मिलती है। अब ये कैलकुलेशन है, ये मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे बता रही हूँ, जरा देखिए। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेल EJV इक्वल्स टू ओमेगा 0, है ना, बार बोल दिया, प्लस BJ डैश माइनस J डबल डैश, देन इन द ब्रैकेट J डैश प्लस J डबल डैश प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मैंने आपको बोर्ड पर पूरी लिखकर बताई है। आफ्टर दैट बस हमको अब वैल्यू पुट करना है कि सपोज हम डेल जे इक्वल्स टू +1 रखना चाह रहे हैं। +1 मतलब फॉर गेटिंग P ब्रांचेस, सॉरी PQR ब्रांचेस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, J डैश बराबर J डबल डैश +1 रखना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं बिकॉज J डैश हाई एनर्जी लेवल है और J डबल डैश क्या है, लो एनर्जी लेवल है, और हमको +1 रखना है, मतलब हाई एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल इक्वल टू +1। इट मीन्स J डैश माइनस J डबल डैश इक्वल टू +1। तो हम यहाँ अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में ये रख देते हैं तो वी विल गेट डेल EJV इक्वल टू ओमेगा 0 ओमेगा बार प्लस 2B, जो हम 2B अपना आता ही है ना, यहाँ पे भी 2B आता है, और J डबल डैश +1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको याद रखना है।
अब बस वही चीज़ है कि जे डबल डैश क्या हो, मे बी 0 1 2। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो ये ओमेगा ही रह जाएगा, 1 कर दोगे तो क्या आता है ये देख लेना। तो वी विल गेट आर ब्रांचेस। क्लियर? किसी को डाउट है? तो ये जे डबल डैश की यहाँ वैल्यू रखना है, जैसे अपन रखते हैं ना 0 एनर्जी लेवल हो जे का, तो 0 + 1 तो क्या वैल्यू आएगी, पूरा ही 0 हो जाएगा आई थिंक, और फिर हमें ओमेगा 0 ही रह जाएगा। और अगर हम 1 रख देंगे तो 1 रखेंगे तो 1 1 कितना होगा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 भी आएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट हियर डेल जे इक्वल टू हम क्या रखते हैं यहाँ -1 रख दें। अगर इफ़ वी पुट -1 तो -1 करेंगे तो क्या होगा, जे डैश हाई एनर्जी लेवल माइनस जे डबल डैश लो एनर्जी लेवल इक्वल टू -1। हैंस डेल ई जे वी इक्वल टू कुछ नहीं, जहाँ +2b है यहाँ हो जाएगा -2b जे डैश +1 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा डैश डैश क्या रखेंगे 0 1 2। और इस तरह से हमको जो वैल्यू मिलना है वो मिलती है ओमेगा बार 0। अगर हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दें तो ये हो जाती है +2bm। तो यहाँ 2b लिया है और इसको m लिख दिया। m क्यों लिखा? m लिखने की वजह है कि m में भी +-1, क्योंकि एक यही डिफरेंस दिखता है जो कि +-1 बताता है। +-1 +-2 m एंड m कैन नॉट बी 0, m 0 नहीं हो सकता। अगर हम m प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पे वो आ जाएगा आपका जे डैश +1, मतलब जे डैश +1 और जे डैश -1, और वो एम हो जाएगा प्लस या माइनस। तो ये चीज़ें होती है, और ये होती है आपकी PQR ब्रांचेस। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो यू में आस्क। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे और शायद ये लगभग हो भी गया है। कुछ किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये आपको फिर ये ध्यान रखना है, मैंने बता ही चुकी हूँ कि डेल जे क्या हो सकता है। अगर -2 होता है तो O ब्रांच, -1 होता है तो P ब्रांच, और अगर ये 0 होता है तो Q ब्रांच, +1 है तो R, और +2 है तो एस ब्रांच। ओमेगा 0 जो बाहर होता है उसको बॉन्ड जो है वो बेंड ओरिजिन कहते हैं, या उसका बेंड का सेंटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने इसकी मैं बुक की भी पेजेस आपको स्कैन करके सेंड कर दूंगी, और अगर कोई डाउट हो तो यू मे आस्क। तो आई थिंक इनफ है। हेलो। Yes, ma'am. कुछ पूछना है इसके अलावा? हैव यू एनी डाउट?